हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है योर इंग्लिश टीचर और मेरा नाम है हिना। अब के बाद आप जितने भी फुल लेंथ आइल्स स्पीकिंग इंटरव्यू इस चैनल पर देखेंगे आपको मिलेगा एक कंप्लीट एनालिसिस, यानी कि आपको डिटेल में बताया जाएगा कि रियल आइल्स इंटरव्यू के हिसाब से कितना सही है और कितना गलत। इंटरव्यू को जज किया जाएगा इन सभी वर्बल और नॉन वर्बल पैरामीटर्स पर जो कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं। Have a quick look at all key parameters. So let's begin and watch this 8-band IELTS speaking interview first. How are you? I'm fine, sir. Are you comfortable? Yes, I'm comfortable. Shall we begin the interview? Yes, sir. Let's start it. Okay, let me first introduce myself. My name is Ashwini Saini and I'll be taking your IELTS interview today, and we'll begin with introductory part where I'll ask some questions related to your life. So firstly, tell me your full name. Sir, my full name is Pramod Kumar. How may I call you? You can call me as Pramod. Pramod, can I see your ID? Yes, sir. Here it is. Thank you. Pramod, do you study or you work? Sir, right now I'm working. I work as an IELTS trainer. Do you work full-time or part-time? Presently, I'm working full-time. My job requires a commitment of at least 8 hours every day because there are so many duties which I perform on daily basis and they take time. For example, teaching and content makings. So it's a full-time job. What do you enjoy most about your job? Well, there are a lot of things which I enjoy about my work. First of all, if I talk about, there is daily interaction with the students, and all my students, they are from different backgrounds and ethnicity. All interactions with them give me a lot of things to learn about life and many other things. I think that's the most enjoyable thing about the work. What are the main duties in your job? Well, there are a number of duties which I perform every day, and my very first and basic duty is to teach and train students in IELTS. IELTS is actually an exam. In this exam, a student is assessed on certain parameter of English language. And this exam is for the students who wish to study abroad, and it is my responsibility to train all the students on all these parameters. Apart from this, I also assess students given on their test performances. Is there anything you would like to change about your job? Well, I love my job as it is, but of course I would like to make it better. For that I have planned a few things. For an example, I would like to leverage technology for the benefits of the students. Also, I think in coming years I would like to take my course online so that the students who are not studying with me can also take benefits, whether they are from my area or from worldwide. If you were not a trainer, what would be your ideal job? Well, it's a difficult question and I have never thought about it. But I think from my childhood itself, I was very much an outward person, and I liked always interacting with other people, I think. So teaching is kind of a job which is, fulfill all these things. But of course, if I wasn't a teacher, maybe I would make a career as a mentor or maybe a motivational speaker, who knows. Okay, Pramod, this is the end of your speaking part 1. Let's move on to part 2, which is a cue card. You can make notes for 1 minute, then you have to speak from 1 to 2 minutes. So your cue card is: describe the job you would like to have, what this job would be, where you would work, which qualifications you would need, and explain why you would like to have this job. Here it is. Shall I speak now, sir? Yes. Okay. Doing a job is the necessity of every human being. It is very important for us to sustain our lifestyle, and also a job keeps us in discipline. Here I would like to describe a job which I would like to do in future. In future, I have planned that I would like to work as a civil servant. To become a civil servant, I would have to give an exam which is taken or conducted by the Haryana Public Service Commission. A lot of people every year sit for this exam, and there is a very tough competition. To pass this exam, I have to go through many subjects which I have to qualify in, and after that, if I pass the interview, I would be eligible for this job.
In civil services department, there are lots of jobs and mainly are of an administrative officer. An administrative officer is one who take charge of the administration responsibility of a division. A civil servant generally works for different ranks of the administration. He works as a bridge between the higher authority and common people. There are a lot of powers which are given to him for the benefits of the masses, and he works for them. That is what I like the most about this job, because this job has a lot of power where you can take the decision which will benefit the country. Also, I have some plans for my country. I think only if at a position of an administrative officer I can implement them, because if I work any lower jobs, I don't think I will have such powers as an administrative officer. Apart from all administrative powers, there is no doubt that there are certain perks which are given to a civil servant, and I have to accept that yes, they are very attractive. The job has a very good income. Also, apart from all the money, if we took aside, I think there is a lot of respect, and it's a very reputed job. And also, because I have certain inclination towards the society, I have some social responsibility also, and from my childhood I am more inclinated towards the benefits of the masses. I also want to do something for the social development. So I think this job would empower me to serve the society in a better way. I think if I work as an administrative officer, I would be able to serve people better, because I will have the power to bring a change in the society. That's it. Okay, this is the end of part 2 cue card. Now I'll ask some follow-up questions. Which job would you say are most respected in your country? Well, there are many jobs which are very much respected in my country as compared to other jobs. For an instance, the job of a defense officer is very much respected in my country. Wherever a defense person goes, he is showered with respect by common people. And also the job of an IES officer is very much respected in the eye of common public. Do you agree that some jobs are still more suited to men or women? Yes, I think this statement is true. Certainly there are some jobs where women have a legacy to outperform men, and vice versa. If I take an instance, there are jobs like receptionist, customer care executive, banking jobs and teaching jobs. I think these are more suitable for women. And the other jobs, if I talk about like construction work job or labor jobs, I think they are more suited to men. Do you think schools provide enough advice and support to students about their future careers? Unfortunately, no. I think still we need a lot of improvement in this direction. In my country, still we have a lack of counseling services for students. I think a student is not assessed properly what are his interests and what are not. So I think we need to implement it on the school level, and I think it is the need of the hour that we do it urgently, because there is still lack of such services in our schools. What changes in employment have there been in recent years in your country? Well, my country, India, is a developing economy, and from last few years it has been developing at a very fast rate. So the scene of employment is seeing a lot of trends and a lot of changes. From the last few years, there are a lot of private companies which are providing employment in different areas. Also, due to the advent of technology, there are internet, and there are many such areas have opened up where there is a lot of employment, and the whole scene of employment has seen a drastic change. Do you think more people will work from home in future? I think yes, this can be a future trend where lots of people do not commute to work and work from home. Given the problem that we have, like traffic problems, and apart from that, lack of transportation facilities. So I think it would be a win-win situation for both employer and employee to work from home. Can you think of any disadvantages of working from home? Of course, it has a downside also. Well, when you are working from home, I think there will be a productivity issue because of lack of supervision. And also when you are working from home, I think there will be more distractions because of your being close to the family. And when you are working from home, obviously you will have to use the internet
for the transmit and for the taking your work and then sending it back. So you do not know when you are distracted by other things which are on internet. So obviously it has some downfall also, but I think they can be managed. Okay, Pramod, this is the end of your speaking interview. Okay sir, thank you very much. तो अभी आपने देखा सैंपल इंटरव्यू. माइंड इट इज नॉट अ रियल आईएलटीएस इंटरव्यू, केवल इसे आपको सिखाने के मकसद से रिकॉर्ड किया गया है. चलिए अब करते हैं इसका कंप्लीट ऑपरेशन, और इसके लिए चलते हैं हमारे इंग्लिश और आईएलटीएस एक्सपर्ट अश्वनी सर के पास. हेलो स्टूडेंट्स, की पैरामीटर्स की लिस्ट आप पहले ही देख चुके हैं और इन सभी पैरामीटर्स को मैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 9 असेस करूंगा. और अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये सभी पैरामीटर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो देखना होगा जिसका टाइटल है इफेक्टिव स्पीकिंग टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. लेट्स बिगिन द एनालिसिस. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी. पूरे ही इंटरव्यू में देयर आर ओनली अ कपल ऑफ वेरी माइनर ग्रामेटिकल एरर्स. जैसे कि एक जगह इन्होंने बोला इफ वी टुक असाइड, यहां पे टुक की बजाय टेक आना चाहिए था. और ऐसा ही छोटा सा एक और एरर है, और क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं हैं, इसलिए जब 100-200 सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनमें से कोई एक आधे सेंटेंस में इस तरह का एरर एक्सेप्टेबल है. सो हम कह सकते हैं कि इट्स नियर परफेक्शन, और इसे मैं रेट करूंगा 8.5 पे. नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल रेंज. एक नॉन नेटिव स्पीकर होने के नाते इन्होंने फिर भी बहुत अलग अलग प्रकार के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया है, और अगर इनकी जगह कोई नेटिव स्पीकर होता तो इससे थोड़ा सा और बेहतर कर पाता ग्रामेटिकल रेंज के हिसाब से. तो मैं फिर से कहूंगा इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, और इसे भी मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 9. अब बात करते हैं वोकैब रेंज की. तो इस मामले में मैं इन्हें 9 आउट ऑफ 9 रेटिंग दूंगा. मैं कुछ शब्द बोलता हूं जो उन्होंने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किए हैं. लेवरेज, आउटवर्ड पर्सन, मेंटर, सस्टेन, एलिजिबल, पर्क्स, और भी कई सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इन्होंने अपने इंटरव्यू में इस्तेमाल किए हैं. नेक्स्ट पैरामीटर है फ्लुएंसी. पूरे 10 मिनट के इंटरव्यू के दौरान इनकी फ्लुएंसी 3 या 4 जगहों पर ही थोड़ा इनकंसिस्टेंट रही है. जैसे एक जगह इन्होंने पहले ऑन बोल दिया, बाद में उसे फिर बदल के इन किया, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट भी था. लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये एक पूरे फ्लो में बोल रहे थे और काफी कंफर्टेबल भी थे. तो इसमें भी मैं इन्हें दूंगा 8.5 आउट ऑफ 9. अगला पैरामीटर है रेट ऑफ स्पीच, और इसमें 9 में से 9 मिलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट था. बहुत तेज नहीं बोल रहे थे, बहुत स्लो नहीं था इनका रेट ऑफ स्पीच, बिल्कुल वैसा था जैसा कि एक इंटरव्यू में होना चाहिए, जिसमें सब कुछ समझ आए हमारे लिसनर को. और नेक्स्ट है इंटोनेशन. यहां पर भी हम थोड़ा सा नेटिव स्पीकर से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम थोड़ा बैलेंस में रहने की कोशिश करते हैं. इन्होंने भी इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी ये बहुत सही इंटोनेशन इस्तेमाल कर रहे थे. तो इसमें भी इनकी 8.5 रेटिंग तो बनती है. नेक्स्ट पैरामीटर है ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता. तो मेरे हिसाब से इनके सभी आंसर्स की लेंथ बिल्कुल परफेक्ट थी. जितने में इनका जवाब कंप्लीट होना था उतने वक्त में कंप्लीट हुआ, और सभी जवाब टू द पॉइंट थे. ना अननेसेसरीली उनको खींचा गया और ना ही कहीं पे कोई कमी छोड़ी. इसमें मैं इन्हें दूंगा 9 आउट ऑफ 9. अगले 2 पैरामीटर हैं वॉइस क्लैरिटी एंड लाउडनेस. इन दोनों में 9 में से 9 रेटिंग ही मिलेगी क्योंकि ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट थे. वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी और लाउड इनफ भी थी कि सामने वाले को ये ना बोलना पड़े कि थोड़ा तेज बोले. हर नया पर्सन इन प्रश्नों के जवाब अपने तरीके से देगा, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिए वो बिल्कुल सही थे. कहीं भी कुछ भी इररेलेवेंट नहीं था. तो इसमें भी मिलेंगे 9 आउट ऑफ 9. नेक्स्ट पैरामीटर इज इंटेलिजेंट पॉजेज. ये जहां जहां भी बीच में रुके हैं डेटा सोचने के लिए रुके हैं, ना कि ग्रामर या वोकैब सोचने के लिए. और इतना पॉज जरूरी होता है अच्छे से अच्छे वक्ता के लिए भी. तो इसमें भी मिलेंगे 9 आउट ऑफ 9. नेक्स्ट पॉइंट है कोहेरेंस एंड कोहेशन. तो इसके हिसाब से भी इनके सभी जवाब कंसिस्टेंट थे और सभी सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हो रहे थे. तो इसमें भी मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 9.
नेक्स्ट टास्क फुलफिलमेंट, तो हाँ इन्होंने एग्जैक्टली वही बोला जो एग्जामिनर ने इनसे पूछा था। ऐसा नहीं है कि बात दिल्ली की चली थी और इन्होंने चंडीगढ़ के बारे में बता दिया। तो इनके जवाब क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सटीक थे, इसलिए मैं इसमें भी 9 आउट ऑफ 9 रेटिंग ही दूंगा। नेक्स्ट असेसमेंट पैरामीटर है एटिकेट्स यानी शिष्टाचार। तो इन्होंने थैंक यू शब्द का इस्तेमाल सही जगह पे किया, सही वक्त पे किया, और इन्होंने अपने पूरे इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि इंटरव्यूअर को ऑफेंडेड फील हुआ हो या अपमानजनक लगा हो, इसलिए इसमें भी इन्हें मिलेंगे 9 में से 9। नेक्स्ट इज न्यूट्रल एक्सेंट। इस पॉइंट पे मैं पर्टिकुलरली कहूंगा कि बहुत से लोग कमेंट्स में ट्रोल करते हैं, हरियाणवी टच है, पंजाबी टच है, इसको 3 बैंड मिलेंगे, इसको 4 बैंड मिलेंगे। तो मैं उन्हें सिर्फ ये कहूंगा कि अगर चीज़ों का ना पता हो तो बकवास नहीं करनी होती। वो आपकी इंग्लिश की असेसमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपसे उनको हॉलीवुड मूवीज़ की डबिंग करानी है इंग्लिश में, या आपको आरजे बनाना है उन्होंने, जिसके लिए कि आपका ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ब्रिटिश एक्सेंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। इसलिए अगर आपकी लैंग्वेज में MTI है, मदर टंग इन्फ्लुएंस है, हरियाणा के स्टूडेंट में हरियाणवी टच आएगा, पंजाब में पंजाबी, गुजरात के पर्सन में गुजराती टच आएगा, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल, और इसके लिए आपका स्कोर डिडक्ट नहीं होता। आपकी इंग्लिश की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। इस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कोई MTI ऑब्जर्व नहीं कर पाया मैं, हल्का सा इंडियन टच है लैंग्वेज में, इंडियन स्टाइल है, इतना तो मेरी स्पीकिंग में भी है और जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं इंडिया के उनकी स्पीकिंग में भी होता है। सो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, इसलिए इस पे मैं दे रहा हूँ 8.5 आउट ऑफ 9 रेट। अगले 4 पैरामीटर्स बॉडी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी एक बात आप ध्यान से सुन ले, मैं जितने भी पैरामीटर डिस्कस कर रहा हूँ उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका सीधे तौर पर इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, जैसे एटिकेट्स हो गया या अभी जो बॉडी लैंग्वेज की मैं बात करूंगा, लेकिन इनका आपके ओवरऑल इंप्रेशन पे फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा, और अगर वो किसी स्टेज पे आके यहाँ उलझा कि 5.5 बैंड दूं या 6 बैंड दूं, या फिर 6.5 और 7 के बीच में अगर वो फंस जाए, तो ऐसे में थोड़ी बायसिंग हो जाएगी अगर आपका ओवरऑल इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो इस इंटरव्यू में जो आई कांटेक्ट था इट वाज जस्ट परफेक्ट, जितना होना चाहिए उतना था। कहीं भी ये घूर नहीं रहे थे अपने इंटरव्यूअर को, और सही तरीके से ऑफ एंड ऑन कर रहे थे अपने आई कांटेक्ट को, जैसा एक नॉर्मल कम्युनिकेटर करता है। तो उसमें मिलेंगे इन्हें 9 आउट ऑफ 9। हैंड मूवमेंट जो थे वो बहुत नेचुरल थे, आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को रिपीट करके, तो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसमें भी 9 आउट ऑफ 9 मिलेंगे। बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्टेबल है, सही तरीके से बैठे हैं, फॉर्मली बैठे हैं, और एक इंटरव्यू के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। लास्ट है जेस्चर, इनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल इनके कंटेंट के साथ जा रहे हैं। जहाँ हल्का सा ह्यूमर है वहाँ स्माइल भी है चेहरे पे, और जहाँ ये सीरियस बात कर रहे हैं वहाँ इनके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस भी हैं। तो इसलिए फेस एक्सप्रेशंस में भी मैं इन्हें दूंगा 9 आउट ऑफ 9। और इन सब के अलावा जो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की कि ये कुछ शब्दों में एस को अननेसेसरली यूज़ कर रहे थे, जैसे ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, कंटेंट मेकिंग्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे एस नहीं आना था जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे थे। और एक दो शब्दों के थोड़े से प्रोनाउंसिएशन इनके अनयूजुअल थे, जैसे एलिजिबल इन्होंने बोला वो एलिजिबल होता है, और इन्होंने जो लेक बोला वो लैक होता है। हालांकि ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद बड़े समझदार हैं। कुछ लोग इतने चतुर होते हैं कि कमेंट में छोटी छोटी गलतियाँ पकड़ के वो लिखने लगते हैं, तो ये वाली मत लिखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ मैं मिस कर गया हूँ या आप कुछ अलग से जानते हैं तो वो ज़रूर लिखें, क्या पता मेरी ही किसी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क हो। बाकी चीज़ें तो मैं भी बिना रिसर्च के नहीं बोलता, पूरी गहराई में खुद उतरता हूँ तभी आप लोगों को कुछ बताता हूँ। तो अगर हम इन सब का मीन निकालें तो इनका जो स्कोर आएगा वो 8.5 या 9 बैंड के बीच में बनेगा, लेकिन मैं इसे बोल रहा हूँ 8.5 क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा थोड़ी हाई रहती हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिकेटर हैं ये अभी भी अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करें। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा असेसमेंट आपको कैसा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि मैं एक 7 बैंड, 7.5 बैंड, 6, 6.5, 5, 5.5 बैंड इंटरव्यू के भी असेसमेंट आपको दूं? तो कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। बने रहें हमारे साथ, सीखते रहें इंग्लिश और लाइफ, और खुश रहें, आबाद रहें।
तो आपने एक फुल आइल्स इंटरव्यू भी देख लिया और उसका कंप्लीट एनालिसिस भी देख लिया। नाउ व्हाट? अब इन सब चीज़ों पर करना है काम आपको। स्टार्ट करो, देर मत करो। अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप अश्विनी सर की 3 महीने की क्लासेस लगा लो। आइल्स में 7+ बैंड स्कोर तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके लाइफ के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हम अपने मिशन पर लगे हैं हरियाणा के करनाल जिले में, और आने वाले समय में हमारी योजना है कि हम अपने क्लासरूम एस्टेब्लिश करें सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और आसपास के एरियाज में। सीखते रहें इसी तरह, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह खुश रहें और आबाद रहें।